वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ निपुण ग्रिल्स एंड ऑडियंस की डिमांड में इस ग्रिल्स में इंडिया रिलेटेड क्विज क्वेश्चंस हैं. सो लॉन्ग क्वेश्चंस वेरी इंटरेस्टिंग. जिसने पहले आवाज निकाल दी, क्या क्या आवाज निकाल रहे हो तुम? वो ओ या जिसने भी पहले निकाल दी वो पहले आंसर ये निकालूंगा मैं. ये मेरा है. तो सुन तो जाएगा ना तो कर ले ऐसे ओके. जिसने भी पहले अपनी अपनी आवाजें निकाल दी वो पहले आंसर करेगा. +10 फॉर करेक्ट आंसर, नो नेगेटिव फॉर रॉन्ग आंसर. इफ यू अग्री टू टेक अ हिंट और हिंट दिया तो 5 मार्क का. ओके लेट्स गो. फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया क्विज. केबीसी म्यूजिक दिया है. ओके. So the largest mango orchard mango farm in Asia is located in India. In 90s, a company received several warnings from Pollution Control Board to do something about the huge pollution caused by their core business. So this mango orchard, whatever. This mango farm was made by planting 1 lakh mango plants in a nearby wasteland, and over 200 species of mangoes were planted in an area of 600 acres. Wow. So where is this orchard? I don't know how to pronounce it. Where is this mango farm located? And it is a place which was pretty recently in news. I could be wrong, but is it Jamnagar? क्योंकि Reliance ने किया थे सारे mango farms. He's right. Jamnagar is Amnagar. जामनगर इज आमनगर. सो रिलायंस वाज द कंपनी जिनको उनको बोला, उनकी रिफाइनरी वहां पे जामनगर में. तो उनको पोल्यूशन वाले बोला कि आप कुछ तो करो. और अब ये पूरा इनका अलग से बिजनेस है आम एक्सपोर्ट करने का. Yes, now it is a huge business. They are like, I think, the biggest exporters. But yeah, it is huge business. So Dhirubhai Ambani Lakhi Bagh Amrai is what the farm is called. Wow. Guys, Jamnagar is Amnagar. वो तो मैंगो सीजन भी आ रहा है. वो अगर आप जामनगर से हो तो हमें बताओ. और अगर आपको मैंगो पसंद है तो नीचे मैंगो इमोजी भी डालो. ओह यस. गाइस, कब तक फन और इन्फॉर्मेशन सिर्फ वीडियो से लेते रहेंगे? मिलके लाइव क्विज खेलते हैं. यस, 20 अप्रैल को हम आप सबके साथ खेल सकते हैं. पर कहाँ? गुड़गांव में. तो डिटेल्स, टिकट्स और प्राइजेस सब हमने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है. लेकिन सिर्फ 50 सीट्स हैं, तो ग्रैब अ सीट इफ यू कैन, मतलब एज सून एज पॉसिबल. या पता नहीं अब कितने सीट्स बचे हैं, तो फटाफट से चेक कर लो और आ जाओ. मिलते हैं. See you on 20th. चलो बैक टू द वीडियो. Next question. Ready? Yes. Let's go. Okay. So for a period of time, India was dominant in this sport at the Olympics, winning 11 medals in 12 Olympics between 1928 to 1980. We also got our very first Olympic gold medal from this sport in 1928. And then Indians also won 6 consecutive gold medals in Olympics from 1928 to 1956 in this sport. Which sport is being spoken about here? काफी excited. Go Swat. हॉकी. You're right. Oh my god. Very specifically men's field hockey. Men's field hockey. But yeah, बहुत ही क्रेजी था. एंड मेजर ध्यानचंद, उनका नाम सुना होगा. तो वो 1928 में जब इंडिया को पहला गोल्ड मेडल मिला था, तो ही वाज लाइक तभी मेजर ध्यानचंद अवार्ड होता है शायद. So reputed, yeah. 10 and 10. Yeah. दोनों मिलके हम 10 on 10 हो गए. स्वैट कोई नंबर आया हमारे यूनिट टेस्ट में. Congratulations. चलो. Next question. India quiz. Let's go. Okay. So pin code 190001 is of a beautiful region, but also of a very unique post office that is said to have started in the British era. It was called Nehru Park Post Office before 2011, but that year the then chief postmaster John Samuel took an initiative to repurpose this post office and rename it as APH. क्या बात करो, APH? It's not APH. I mean it's X, like. Blank. So you are saying APH. Yeah. Oh, acronym नहीं है APH. APH is us guys. यार तो X लिखता. ये मेरा न्यू थिंग है अभी. अच्छा, आप लोग समझ जाना. ब्लैंक को मैंने APH से भर दिया है. ठीक है. So its officials make sure to leave a mark on all the letters that pass through this post office by putting a very special seal, जिसकी फोटो दिखेगी यहाँ पे. What is like? Why is this post office special? What is it called? ये पोस्ट ऑफिस इज द ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस और ये डल लेक में है और ये शिकारा है शायद ये स्टैम्प के ऊपर. You are any guesses? क्या बुलाते हैं उसको? Like what is it called? The post office? श्रीनगर पोस्ट ऑफिस.
Yeah. हाँ तो यही तो बोला मैंने, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस. हाँ. नहीं, I mean it is also floating and इसका नाम भी है. अच्छा, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस. You're right. Oh. Yeah, it is floating post office located on the lake. Okay. So next question is also like a game plus a GK question. You don't need a pen. Okay. हाँ. So there's a GK puzzle quiz. Okay. Exactly जैसे हम अपने न्यूज़लेटर्स में भी भेजते हैं हर Wednesday. हाँ. It's all for free. So yeah, link is in the description. But let's go. So इस word search में 3 Indian cities के नाम है. These are the 3 Indian cities that have both IIT and IIM. Find their names here. 3 Indian cities. Only 3 Indian cities which have IIT and IIM both. डायगोनल भी हो सकता है. हाँ, डायगोनल पीछे भी आ सकता है ना. हो सकता है बट नहीं है, पीछे नहीं है बट या हो सकता है. चलो सब हो सकता है. One eternity later. Hint दो. I can tell you first letters of the 3. हाँ, मैं तो लेने होते हैं ना. फर्स्ट लेटर्स हैं J, M और I. One city starts with J, one starts with M, one starts with I. मैं सिर्फ जम्मू गेस हाँ, कर मुझे जम्मू और इंदौर मिला. ओ इंदौर. INDORE. पता नहीं, मुझे लग रहा था ये मिम्मा कुछ होता है पर. हाँ, मुंबई यार. मैं ढूंढ, मुझे ये दिखा था बस. मैं यहाँ जाती थी बंदी राव ऊपर. सेम मैं यार. और मैं बॉम्बे पे चला गया था. क्या आईटी तो बॉम्बे है. ओह नो, किसी को भी नहीं मिला. Oops. Guys, ये 5 पॉइंट आपके या शायद 10 पॉइंट आपके if you searched it पहले. Oh, very good. But yes, these are the 3 Indian cities: जम्मू, इंदौर and बॉम्बे, मुंबई, जिनमें दोनों IIT और IIM. काफी सारी स्टेट्स में भी है बट सिटीज स्पेसिफिकली सिर्फ ये 3 Oh, है. nice. हाँ, so let's get back to our grill. What is 20 and 10? 20 and 10 and 10 points gone to audience. ठीक है. Next question. Here we go. Okay. Sriharikota, an Indian barrier island, is no ordinary island for our country. It separates Pulicat Lake from Bay of Bengal and is located in Tirupati district in Andhra Pradesh. Sriharikota was selected for the purpose of X or APH for multiple reasons. One of them being its proximity to the equator. What is APH? What is this purpose जिसके लिए ये select हुआ था? A purpose this island is really famous for. So श्रीहरिकोटा एक बहुत पॉपुलर इंडियन आइलैंड है एंड यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसके लिए ये बहुत पॉपुलर है. और एक रीज़न जिससे ये जगह चुनी गई थी बस क्योंकि इक्वेटर के बड़ा पास है. तो क्या होता है यहाँ पे? बिकॉज ऑफ बे ऑफ बंगाल में है और वो इक्वेटर के पास है. वी लॉन्च स्पेसशिप्स या रॉकेट्स फ्रॉम हेयर. इसरो लॉन्चेस रॉकेट्स फ्रॉम दिस प्लेस. राइट या ये हमारा इट इज होम टू सतीश धवन स्पेस सेंटर जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च मिशंस कंडक्ट होते हैं. वाओ. एंड या मैंने पढ़ा था, आई थिंक मोहित कैन एक्सप्लेन बेटर, कि इक्वेटर के पास है तो इक्वेटर में रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा. हाँ, तो अर्थ ऑलरेडी स्पिन हो रही है. हाँ. तो सबसे ज्यादा स्पिन जो उसका फील होता है इक्वेटर पे होता है. यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 0 चल रहा है, सिर्फ गोल गोल रोटेट कर रहे हैं. तो जब वो ऊपर जाता है तो हम अर्थ की रोटेशन से ही थोड़ा सा वो फ्लिंग ले लेते हैं ताकि हम इतना जोर ना लगाना पड़े. थोड़ा सा अर्थ के जोर से हम थोड़ा सा आगे चलने लग जाए. Got it. So yes, you're right. एंड मुझे सबसे फैसिनेटिंग लगा था कि एक आइलैंड है. आई मीन कंट्री में अंडमान और लक्षद्वीप के अलावा भी बहुत आइलैंड्स हैं. हाँ, यूजुअली हम ट्राई करते हैं किसी सिविलाइजेशन के आसपास ना हो, क्योंकि अगर क्रैश हो जाए तो सिविलाइजेशन के ऊपर खतरा हो जाता है. तो यूजुअली हम कोस्ट से ही लॉन्च करने की ट्राई करते हैं. Got it. Next question. About 130 years ago, a Parsi banker wanted to have home cooked food in his office and gave this responsibility to the first ever X. Okay. It was all informal and individual effort in the beginning, but visionary Mahadeo Havuchi Bache saw the opportunity and started this service in its present team delivery format with 100 people. They initially started with simple color coding,
but have now evolved into alphanumeric coding. This service is a global case study. Prince Charles also invited X to his wedding in London on April 2005. What service is being talked about here? Yep. Oops. मतलब मैं हो सकता है गलत हूँ क्योंकि इनवाइट यहाँ पे है फर्स्ट एवर APH और फिर इनवाइटेड APH तो शायद सर्विस को ही इनवाइट किया पर आई डोंट नो. First ever X. हाँ तो दिस इज डब्बा सर्विस इन मुंबई. You are right. This is the Mumbai Dabba Wala service, and yeah. वाओ माय गॉड. डब्बा वाला. Yeah. यार ये तो बहुत फैसिनेटिंग है कैसे इतने सारे डब्बे कैसे टाइम पे पहुंच जाते हैं लोगों के पास. करेक्ट. और मुझे ये फैसिनेट लगता है कि क्या सिस्टम होता है इनका कोडिंग का कि पहले ऐसा था कि सिंपल कलर कोडिंग काम चलाता था पर अब ना वहाँ मेट्रो भी बन गई थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया सिस्टम. सो नाउ दे ऑल्सो हैव थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कोडिंग बट वेरी इंटरेस्टिंग. बट इनवाइटेड APH डब्बा वाला को इनवाइट किया था. अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा वो डब्बा वाले को ही उन्होंने इनवाइट किया था. आई थिंक द पर्सन और आई डोंट नो पीपल बट या he met them. he saw रिचर्ड ब्रांसन भी जब आया था इंडिया तो he also उन्होंने कुछ वर्जन ऑफिस में डिलीवर भी करे डब्बा वाला विद द डब्बा वाला. तो काफी ग्लोबल सेंसेशन है डब्बा वाला. बट या सो स्कोर इज 40 under 40 and 10. मैं अपने स्वीट स्पॉट पे पहुंच गया. अब सारे तेरे ही आएंगे. मोहित का रिकॉर्ड है doesn't go 40 से beyond ऊपर 40. या इससे आगे जा ही नहीं पाता मैं. चल. Okay, next question. Okay. Mawsynram and Cherrapunji are two places located pretty near to each other, a less than 3-hour drive away. But they have a rivalry, which is the title of the wettest place on earth. Okay. So, with 11,872 millimeter of average rainfall received annually, Mawsynram beats Cherrapunji by a very small margin. For comparison, Delhi receives an annual rainfall of just 774.4 millimeters. So, they receive 11,000. 10x more. Yeah. But Cherrapunji, yeah, more than 10x. Not 10x. हाँ. But Cherrapunji holds the Guinness World Record for greatest rainfall in 48 hours, in 1 month and in 1 year. All this is due to the location of these two places in the Khasi Hills, which are exposed to moisture-laden winds which come from the Bay of Bengal. Which state are these two places located in? Woo! Is it Mizoram? Naughty. Is it Kerala? No. Oof. अब hints दे हम 5 points के लिए जो. Oh man. Hint is Swati was in the right area. Oh. See, she thought right. Bay of Bengal. चलो स्वैट नहीं आई मीन जो भी आवाज निकाले. बस ये एक हिंट है. हाँ मतलब वहाँ से गेस करो. नॉर्थ ईस्ट में जाना है. हाँ इन द राइट. वहाँ की कोई स्टेट है. कुछ भी गेस मारता हूँ. मेघालय. You're right. तभी मैं जी सेड मिजोरम मुझे लगा नहीं. Oh champ yes. Yeah. 40 के आगे तो इसको जाना था ही नहीं. So yes, ये दोनों मेघालय में है. क्या बात है भाई. क्या बात है. बहुत बारिश होती है. यूजुअली रेनी सीजन के टाइम ही हो जाती है बट यार मैंने ये भी पढ़ा था कि इनके जो घर होते हैं ना वो भी ऐसे स्पेशली साउंड प्रूफिंग से करते हैं क्योंकि रेन की बहुत तेज आवाज आती रहती है. सो दैट इज इट. ओह मैं तो खुश हो सकता हूँ. पर मैं इसलिए सैड हूँ कि मैं और 40 के आगे नहीं जा पाया. Once again. 40 under 40 and 15 points. Woo! And एक क्वेश्चन मैं ऑडियंस के लिए है तो उन्हीं के लिए रखती हूँ. तुम गेस कर लेना पर वो हम कट कर देंगे. म्यूट कर देंगे. हाँ म्यूट कर देना. हाँ ठीक है ऐसे करके बोलना. हाँ ओके. सो यक्ष एंड यक्षी ये दो स्टैचूज के नाम है. दे गार्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन बिल्डिंग. रामकिंकर Bej sculpted these two iconic statues. Which building do they guard? And any other interesting trivia you know about? That was Nipun Grill's India edition. And the winner is Mohit. And the runner-up is Swati. And the second runner-up is me.
इस क्विज के विनर मोहित है, तो मोहित के बाद अगर आप, या मे बी मोहित से पहले अगर आपने आंसर दिया तो आप बताओ कि आप विनर हो या आप यस, runner up हो? स्पेशली थ्रिल सेक्शन में तो हाँ। दोनों ही नहीं कर पाए, सो Yeah, आई थिंक यू definitely. गाइस मस्ट हैव वन। ये दूर दूर से कब तक खेलेंगे, मिलकर खेलते हैं 20th अप्रैल को गुड़गांव के अंदर। सिर्फ 50 लोगों की जगह हम कर पाए अरेंज, तो 50 people, first 50 people to purchase the ticket from the link in the From the link in the first 50 people to purchase the link. The first 50 people to purchase the ticket from the link in the description will come join us and we'll play some quizzing all together. Yes, असली में same. जीतते हैं। हाँ, ये जो हम आपस में खेल रहे हैं हम आपके साथ आपके खेलना साथ खेलेंगे एग्जैक्टली ऐसी क्वेश्चंस। वेरी क्लोज टू दिल्ली मेट्रो का स्टेशन एक पास में है, तो आप दिल्ली से आओ, गुड़गांव से आओ, एंड लेट्स मीट यू गाइस एंड लेट्स प्ले। यस, एंड बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यस, ओके बाय। बाय। अरे ओ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। हाँ, टू? वो भी कर लो। टू अरे पता है। रॉक पेपर सीजर। There are 2 more questions. You can still tie. Oh, Okay? that was such a good game. Man jam. Yay! Wow. पता है, अरे पता है, अरे पता है। Why are you क्या आपको मोहित का गाना अच्छा लगता है? Please tell us because we are अगर- telling him but he's not listening. या अगर आपको अच्छा लगता है तो मे बी 20th को ये गाना गाएगा। Oh yes. ये गाना गाएगा। आप सब जब मिलोगे हमें, he'll give us a performance। इसको गाना बोलते हैं। जो भी बोलते हैं वही होगा। हाँ, 3-4 लिरिक्स बना और फिर गा। तुझे हम देते क्यों हैं सड़े मजा। अकेले? आप सब भी सुनो साथ में। ओके, see you on the 20th। Welcome to this video.